Okay friends, let's start with new chapter, differentiation. So differentiation में पहले हम बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं एंड बेसिक कंसेप्ट्स और फिर उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे. पहला d by dx ऑफ x टू द पावर n. सो यहाँ पे n x टू द पावर n माइनस 1, यानी ये जो पावर है सामने और एक पावर कम हो जाएगा. इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं. d by dx ऑफ x टू द पावर 5, ये हुआ 5x टू द पावर 4. d by dx ऑफ x स्क्वायर 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 2x एंड d by dx ऑफ x 1. और यहीं पे d by dx ऑफ कांस्टेंट दैट इज d by dx ऑफ कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0. d by dx ऑफ 1 by x, सो ये 1 by x हुआ. d by dx ऑफ x टू द पावर माइनस 1, सो माइनस 1 और एक माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो याद रखना d by dx ऑफ 1 by x इज इक्वल टू माइनस 1 by एक्स स्क्वायर. d by dx ऑफ अंडर रूट एक्स, d by dx ऑफ x टू द पावर 1 by 2, सो ये 1 by 2 x टू द पावर 1 by 2 माइनस 1, सो d by dx ऑफ अंडर रूट एक्स ये हो गया 1 by 2 और x टू द पावर 1 by 2 माइनस 1 इज माइनस 1 by 2, सो ये नीचे आके प्लस 1 by 2, सो d by dx ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो ये पूरे फॉर्मूले से, वो एक बेसिक फॉर्मूले से डिराइव हुए. d by dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1. नाउ सेकेंड फॉर्मूला d by dx ऑफ sin x, दिस इज cos x. थर्ड d by dx ऑफ cos x माइनस sin x, d by dx ऑफ tan x sec square x, d by dx of cot x minus cosec square x, d by dx of sec x into tan x, d by dx of cosec x minus cosec x into cot x. 8th, d by dx of e to the power x is e to the power x 9. d by dx of a to the power x is equal to a to the power x log a. And 10th, d by dx of log x is equal to 1 by x. So अगर हमने 10 फॉर्मूले याद कर लिए डिफरेंशिएशन में, तो हमारे लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत सिंपल हो सकता है. पहला d by dx of x to the power n, this is n into x to the power n minus 1. d by dx of sin x cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x sec square x, d by dx of cot x minus cosec square x, d by dx of sec x into tan x, d by dx of cosec x minus cosec x into tan cot x, d by dx of e to the power x is equal to e to the power x, and d by dx of a to the power x is equal to a to the power x log a. d by dx of log x is equal to 1 by x. Now हमें कुछ बेसिक रूल्स ध्यान में रखने हैं. सम रूल, d by dx of f of x plus g of x. सो इसे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, d by dx of f of x plus d by dx of g of x. एग्जाम्पल, d by dx of x cube plus 10x. So this will be equal to d by dx of x cube plus d by dx of 10x. अब x cube का d by dx 3x square, 10x का d by dx sec square x. अगर ये इस पैटर्न में d by dx of f of x minus g of x
देन इसे हमें सॉल्व करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स. सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स. Now third type d by dx of k into f of x, where k is a constant, so it will be equal to k into d by dx of f of x. Example d by dx of 7x cube. So this is equal to 7 into d by dx of x cube. 7 into 3x square 21x square. एक और एग्जांपल लेते हैं इसका. d by dx of 8 sin x. So 8 into d by dx of sin x, this is 8 cos x. Fourth, product rule. डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यानी इस बार हमें दो फंक्शन दिए हुए, ये फर्स्ट ये सेकेंड. सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू. सो प्रोडक्ट रूल में क्या है, पहला और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करना है प्लस सेकेंड फंक्शन और फिर हमें फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है. एग्जाम्पल d by dx of x into log x. So ये हुआ पहला फंक्शन, ऐसे लिखेंगे x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x. x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x. So ये हो गया x into d by dx of log x is 1 by x plus log x into 1 plus log of x. इसके और एग्जाम्पल लेते हैं. d by dx of e to the power x into x cube. d by dx of e to the power x into x cube. So this is equal to e to the power x into d by dx of x cube plus x cube into d by dx of e to the power x. e to the power x, d by dx of x cube is 3x square plus x cube d by dx of e to the power x is e to the power x. So हमारा d by dx of e to the power x x cube ये हुआ x square e to the power x 3 plus x. Fifth, quotient rule. d by dx of u by v, ये हो जाएगा v square v into du by dx, v into du by dx minus u into dv by dx. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. d by dx of sin x by cos x. Now this is equal to cos square x, cos x into d by dx of sin x minus sin x d by dx of cos x. So यहाँ पे cos square x, cos x d by dx of sin x, that is cos x minus sin x and d by dx of cos x minus sin x. So minus minus plus into sin x.
So cos square x plus sin square x. This is 1 upon cos square x. So d by dx of sin x by cos x is equal to sec square x. और ये हम वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, sin x by cos x is tan x. So d by dx of tan x is equal to sec square x. So ये बेसिक से फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं. प्रोडक्ट रूल स्पेशली d by dx of uv, u into d by dx of v plus v into d by dx of u, and quotient rule d by dx of u by v is equal to डिनोमिनेटर में v स्क्वायर v into du by dx minus u into dv by dx. What if प्रोडक्ट रूल में 3 फंक्शन आ गए, जैसे कि d by dx of u v w. इस बार हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन को वैसे ही रखेंगे और तीसरे का डिफरेंशिएशन u v d by dx of w. फिर इन दोनों को वैसे ही रखेंगे u w dv by dx, एंड उसके बाद v w du by dx. एग्जाम्पल d by dx of x into sin x into e to the power x. This is equal to x into sin x d by dx of e to the power x plus x into e to the power x d by dx of sin x plus sin x into e to the power x d by dx of x. So अब ये हो गया हमारा d by dx of x into sin x into e to the power x is equal to x into sin x. d by dx of e to the power x is e to the power x plus x into e to the power x d by dx of sin x cos x plus sin x into e to the power x, and d by dx of x is 1. And 6th is chain rule. अब चैन रूल में जैसे हमें दिया हुआ है d by dx ऑफ sin रेज टू 7x. सो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सो सबसे पहले ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो d by dx ऑफ sin रेज टू 7x इज 7 sin रेज टू 6x. 7 sin रेज टू 6x. अब sin x को डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx ऑफ sin x. So this is 7 sin raised to 6x into d by dx of sin x is cos x. मतलब ये पूरा इस पैटर्न में लिए हमने d by dx of sin raised to 7x. So let u is equal to sin x. u is equal to sin x. So हमें निकालना है d by dx of u raised to 7. So this will be equal to 7 u to the power 6, and फिर हमें u का डिफरेंशिएशन करना है du by dx. So 7 u to the power 6 and d by dx of u, that is sin x. So ये वैल्यू डाल दिए 7 u to the power 6 sin to the power 6x into d by dx of sin x is cos x. इसके और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. सो रेदर देन ये मेथड हम हमारे दिमाग में ही रख सकते हैं कि हमें कैसे उसे ध्यान में रखना है. d by dx ऑफ cos ax plus b. नाउ सो पहले cos का माइनस साइन ax प्लस बी, और फिर हम उसके अंदर जाएंगे ax प्लस बी. सो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a. सो दिस इज इक्वल टू माइनस a साइन ax प्लस बी. d by dx ऑफ अंडर रूट साइन x. सो हमें पता है अंडर रूट में आंसर आ रहा है 1/2 अंडर रूट साइन एक्स. अंडर रूट के लिए जो आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स.
और फिर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का, सो ये हो गया cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 इंटू साइन 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 इंटू साइन 3x। सो ये हुआ पहले तो प्रोडक्ट रूल, x टू द पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7। सो अब ये हो गया x टू द पावर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज cos 3x, और यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है फिर 3x का फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना है जो हो जाएगा 3 प्लस साइन 3x और x टू द पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x स्क्वायर इंटू लॉग 4x प्लस 7। सो यहाँ पे भी पहले प्रोडक्ट रूल फिर उसके बाद चेन रूल। सो e टू द पावर 5x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4x प्लस 7 प्लस log 4x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x स्क्वायर। सो अब ये e टू द पावर 5x स्क्वायर हमें log का पता है 1 अपॉन 4x प्लस 7, एंड फिर हम चैन रूल के हिसाब से 4x प्लस 7 का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो 4x प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4 प्लस log 4x प्लस 7 e टू द पावर 5x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा e टू द पावर 5x स्क्वायर, एंड फिर हमें 5x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू 10x। सो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स बनाने हैं। अगर हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए तो बाद वाले प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सॉल्व दिस 5 प्रॉब्लम। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी जैसे अपन पहला प्रॉब्लम लेंगे जिसमें मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, सो सबसे पहले ये फंक्शन है फाइ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगा 4, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है उसके अंदर वाले को एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। सो ये आंसर आया फाइ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 इज 0। Second problem, let y is equal to 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 raised to 5 by 2. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to 5 by 2 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5, और ये जो पावर है एक कम हो जाएगा 5 by 2 minus 1 दैट इज 3 by 2, और फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है ये अंदर में। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1 दैट इज 1 by 2 माइनस 3 into 4 by 3 x to the power 4 by 3 minus 1 1 by 3 and minus 5 is constant. So dy by dx
is equal to 5 by 2, 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 raised to 3 by 2. This is cancelled. 3x to the power 1 by 2 minus 4x to the power 1 by 3. Third problem, y is equal to under root x square plus 4x minus 7 differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to 1 upon 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ये अंदर वाले पार्ट को डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. सो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 1 इंटू है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एंड प्लस 4x का 4 एंड 7 कांस्टेंट है तो 0. फोर्थ, y इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट x. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो अब अंडर रूट 10 अंडर रूट x इसे डिफ्रेंसिएशन करना है तो पहले अंडर रूट वाले का. सो अंडर रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट x. फिर 10 का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे दैट विल बी सेक स्क्वायर अंडर रूट x एंड फिर अंडर रूट x का डिफ्रेंसिएशन करना है दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x. सो सीधा साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले हम ये बाहर के अंडर रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट जो भी है उसे वैसे ही लिखना है 10 अंडर रूट x. फिर इस 10 का डिफ्रेंसिएशन करना है. सो जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 10 अंडर रूट एक्स किए सो ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 10 सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स. और फिर हमें अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स into sec square under root x into 1 upon 2 root x. Fifth problem, y is equal to log of cos x cube minus phi. Y is equal to log of cos x cube minus phi. Differentiate with respect to x. So अब ये हो गया dy by dx. डी वाई बाई डी एक्स. सो लॉग ऑफ एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स. सो लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 का होगा 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5. 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5. अब फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है इसके अंदर वाले पार्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5. सो ये हो गया cos x क्यूब माइनस 5 एंड cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x क्यूब माइनस 5. एंड फिर अब इस पार्ट का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5. सो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड माइनस 5 का 0. ओके फ्रेंड, लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स. सिक्स्थ, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. सो यहाँ पे जो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला देखा है बस उसी को अप्लाई करना है. पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सेम वैसे ही कंसेप्ट से 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर कॉस 3x 2 cos square 3x by 2. So y is equal to log, this 2 is cancelled, under root and square cancelled and sin by cos
is tan 3x by 2. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to log 1 upon tan 3x by 2. फिर tan 3x by 2 का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, जो हो जाएगा sec स्क्वायर 3x by 2. और फिर 3x by 2 का हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जो है 3 by 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 7th. y is equal to log of log x. Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to, सबसे पहले पावर का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, 2 इंटू log of log x स्क्वायर है, एक पावर कम 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब सिर्फ ये पार्ट का log of log x इस तरह से. So dy by dx is equal to twice log, फिर से log of log x डिवाइड बाय, अब log का ये हो जाएगा 1 अपॉन log of log x into d by dx of, now this part, that is log of log x. So dy by dx is equal to twice log of log x, एंड log of log x का है 1 अपॉन log x, और फिर हम d बाई डी एक्स लेंगे log x का, दैट इज 1 बाय x. सो इस तरह से हमें डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करना है. एक और प्रॉब्लम, y is equal to 1 plus 4x to the power 5 into 3 plus x minus x square to the power 8. सो यहाँ पे पहले तो हमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x टू द पावर 5. अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, पहले ये पावर सामने एक कम और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंसिएशन करना है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू, सो ये 8 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, और फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो उसका आंसर आ जाएगा 3 का तो 0, x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2x प्लस, अब इसे डिफ्रेंशिएशन करना है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, और अब इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू 5 1 प्लस 4x 5 माइनस 1 4, और फिर ये अंदर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो 1 प्लस 4x का इंटू 4. सो इस तरह से हमें और भी प्रॉब्लम की हमें प्रैक्टिस करनी. जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक हमारा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. ओके फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम अदर प्रॉब्लम्स. 9th, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x.
सो पहले तो हम ये e टू द पावर माइनस 2x को बाय इंडाइसिस रूल 1 अपॉन e टू द पावर 2x लिख सकते हैं. सो अब ये इस तरह से हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x. और फिर अब इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1, और दोनों में डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2x कैंसिल. और फिर अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस 1 e टू द पावर 4x प्लस 1. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अब क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे हम e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ v पहला e टू द पावर 4x प्लस 1 d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x माइनस 1 माइनस u e टू द पावर 4x माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट e टू द पावर 4x प्लस 1. सो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा अब e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ e टू द पावर 4x प्लस 1, e टू द पावर 4x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा e टू द पावर 4x एंड 4x का 4. सेम इस साइड माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1, और ये भी 4 इंटू ई टू द पावर 4x. e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 e टू द पावर 4x कॉमन ले रहे हैं हम. सो यहाँ पे e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 4x प्लस 1. सो दिस इज कैंसल, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 4 8 e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10th y is equal to e to the power log of log x whole square minus log x square. सो जब भी ये इस पैटर्न में रहेगा सो ये पूरा हट जाएगा. y is equal to log of x whole square minus log x square. एक्चुअली ये इस पैटर्न में अगर कुछ रहता है, इफ y is equal to log e to the power x, then y is equal to x. देखते हैं ये कैसे आया. टेक log on both sides. So log y is equal to log e to the power log of e x. So log y is equal to ये पावर सामने log e into log e 1. So log y is equal to log x, therefore y is equal to x. So हम बेसिक सा चीज़ याद रख सकते हैं, जब भी e टू द पावर log रहा हम उससे हटा सकते हैं वहाँ से. जब भी e टू द पावर log रहा तो हम वो चीज़ को वहाँ से हटा देंगे. सो अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log of x log x होल स्क्वायर. सो 2 log x, 2 log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो दैट इज 1 बाय एक्स माइनस सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है log x स्क्वायर. सो अब यहाँ पे माइनस log ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. log ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है. सो दैट इज 2x. सो ये जो हमारा dy बाई डी एक्स आया ये हो गया है 2 log x बाय x
माइनस 2/x. प्रॉब्लम नंबर 11. y is equal to 25 to the power log base 5 sec x minus 16 log to the base 4 tan x. सो y इज इक्वल टू 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर log टू द बेस 5 sec x माइनस 4 स्क्वायर log टू द बेस 4 tan x. सो y इज इक्वल टू ये 2 पावर में इस तरह से 5 log 5 sec स्क्वायर x माइनस 4 log टू द बेस 4 tan स्क्वायर x. अब सीधा सा है, सेम यही कंसेप्ट से e टू द पावर log या e टू द पावर log ही, तो ये 5 टू द पावर log बेस 5 ये हटा सकते हैं हम. तो यही चीज अभी ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये चीज अगर हमने हटा दिए y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये एक आइडेंटिटी है. y इज इक्वल टू 1. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो अब ये कांस्टेंट है, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 0.